صدارتی الیکشن سے پہلے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر نامزد ارکان کی حلف برداری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے حلف اٹھانا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کا اسپیکر پر توہین عدالت کا الزام۔ ایاز صادق نے بھی بتا دیا پشاور ہائی کورٹ کا حکم ابھی تک نہیں ملا، عدالتی فیصلے کا اطلاق صرف خیبر پختونخوا کے مخصوص نشستوں پر ہوتا ہے، دیگر صوبوں کی اسمبلیوں پر نہیں۔ اٹارنی جنرل کا موقف، سنی اتحاد کونسل کے ایوان میں شور شرابہ۔ پوسٹپون کر کے پارلیمان کی کمیٹی بنائی جائے، مجھے چھوڑ کے اینی سینئر ممبر ود ان 7 days ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ I suggest, I request everybody, those are concerned. مخصوص نشستوں کا تنازع حل ہونے تک صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست مسترد۔ پارلیمانی کمیٹی کشیدہ صورتحال کا جائزہ لے، ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی مخصوص نشستوں اور بانی پی ٹی آئی کے معاملے کا حل نکالنے کی تجویز۔ آپ سب کے پاس آیا ہوں اور ممبران جو پنجاب اسمبلی ہے، اب سب سے میں ووٹ مانگنے آیا اور وہ بھی اپنا والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا۔ تو میں اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے۔ بلاول بھٹو نے پنجاب کے لیگی ارکان اسمبلی سے آصف زرداری کے لیے ووٹ مانگ لیے، بحرانوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مثبت جواب، ووٹ نہ بھی مانگتے آصف زرداری کو ہی ووٹ دینا تھا۔ ایوان صدر میں 5 سال تک آئین شکنی کا الزام۔ نے کہا کہ آج آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں، اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دیتی۔ جو پچھلے 5 سال آئین شکنی ہوئی ہے اس سے پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا۔ صادر عارف الوی کو الوداعی گارڈ آف آنر مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ صادر عارف الوی کی 5 سالہ آئینی مدت 8 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی۔ نگراں سیٹ اپ کی وجہ سے ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ صدارتی انتخاب کے لیے کل الیکٹورل کالج کے ذریعے پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ اراکین اسمبلی اور سینیٹر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 3 مخصوص نشستوں کے ووٹ صدارتی انتخاب میں شامل نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ سنی اتحاد کی درخواست پر عدالت کا الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو 28 مارچ کے نوٹسز جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فریقین کو 13 مارچ کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں۔ اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں، اسپیشلائز سیٹس، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ سینٹ میں لیگی سینیٹر مشاہد حسین نے مخصوص نشستیں سنی اتحاد کا حق قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ سینیٹر علی ظفر نے پی ٹی آئی کے قید تمام خواتین رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کی رہائی کی قرارداد جمع۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف غیر قانونی ایف آئی آرز فی الفور ختم اور قانون کا غلط استعمال بند کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ سیاسی نہیں، معاشی مسائل تک محدود۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا۔ تمام انتخابی اعتراضات کے پرامن انداز میں حل کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے اور دوسرے جائزہ مذاکرات مکمل کرنے کا خواہش مند۔ یہ بھی ہے، اب وہ بیٹھ گئے ہیں، ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے، حق مانگتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے، ظاہری بات ہے ہمیں رکھنا ہے، ہم چلیں گے، ہمارے جو حقوق ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی، ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، ہم بیٹھیں گے بھی صحیح۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے شہباز شریف کو آئینی وزیر اعظم تسلیم کر لیا۔ شہباز شریف سے ملنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، وزیر اعظم کے ساتھ مل کر صوبے کے حقوق اور بھلائی کے لیے کام کرنے کا اعلان کر دیا۔ واضح کر دیا صوبے کے عوام کی خاطر ہر فورم پر جائیں گے، اگر پارٹی میں کوئی زرداری کو صدر کا ووٹ دینا چاہتا ہے تو کھل کر سامنے آئے، چوری چھپے نہ دے۔
बड़े और कड़े फैसलों का वक्त आ गया। आम आदमी के फायदे के लिए अशराफिया को कड़वी गोली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने की हिकमत अमली बता दी। टैक्स चोर माफिया से निपटना एक बड़ा चैलेंज करार। जातियात से बालातर होकर नफरतें खत्म करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाकर अहम वजारत देने का फैसला। मोहसिन नकवी नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी रखेंगे। 9 में जलाओ घेराव केस में समाअत करने वाले एटीसी जज का रहीम यार खान तबादला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव मुकदमे में 42 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। आलमी यौम ख़वातीन पर मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे और औरतों के हुकूक के नारे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत शहर शहर रैलियां निकाली गईं। पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए ख़वातीन हुकूक का मुतालबा। शेखुपुरा में 2000 तालिबात और ख़वातीन ने बैक वक्त 12,000 पौधे लगाए। ननकाना में भी शजरकारी मुहिम में ख़वातीन की शिरकत। बिहाड़ी, बहावल नगर और जामशोरो समेत कई शहरों में रंगारंग तकरीब। सर्विस में कमीशन जो है इसमें 10% कोटा था ख़वातीन का, मैं इसको आज से 15% करूँगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ख़वातीन को पिंक स्कूटी और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान। अजीम ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह, बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम अब्दुल्ला हारून और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के लिए रोल मॉडल। मरियम नवाज पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनी। लाहौर की ASP शहरबानों ने खातून के हुजूम से जान बचाकर बहादुरी और शुजाअत की मिसाल कायम कर दी। ख़वातीन के आलमी दिन पर लाहौर में जमात इस्लामी की ख़वातीन रैली। आज का दिन मज़लूम फ़लस्तीनी ख़वातीन के नाम। कराची में हाफिज़ नेमुर्रहमान का तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर में तालिबात का रैली निकालकर कश्मीरी ख़वातीन को हुकूक देने का मुतालबा। आइन में हाकमियत अल्लाह ताला के पास से, आइन के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में ख़वातीन को तमाम हुकूक के साथ बहुत अहमियत दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। हाजमबरों के करीब खुले समुंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। 45 माहीगीर सवार थे। पाक बहरी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले शरपसंदों से असलहा और गोला बारूद भी मिला। कराची के इलाके सामनाबाद लतीफ टेरिस के करीब रेंट ए कार के बाहर फायरिंग से 2 अफगान नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। खानेवाल में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को घर बुलाकर लड़की के चचा ने फायरिंग कर दी। दोनों जाँ बहक। लाड़काना में 2 ग्रुपों की फायरिंग में 2 ख़वातीन जान से गईं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस। टायर्स जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में लेने का हुक्म। PSL में ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किराया वसूल करने की हिदायत। पाकिस्तान IMF से दूसरे जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। तमाम अहम शराइत पूरी कर ली। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात रवां माह होने का इम्कान। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को 2 इक़्तिसाद के मद में तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं। हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पहले सेशन में 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की हद से आगे निकल गया। दूसरे सेशन में शेयर्स की फरोख्त का दबाव गालिब रहा। इंडेक्स सिर्फ 101 पॉइंट्स इजाफे से 65,700 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम। 282 रुपए 10 पैसे में फरोख्त होता रहा। सोने की कीमत में फी तोला 450 रुपए इजाफा। निर्ख 2,28,600 रुपए तक जा पहुंचे। पाकिस्तान से उबले हुए गोश्त की चीन को बरामद 6 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। 2 माह में 2 करोड़ डॉलर से जायद ज़र मुबादला कमाया गया। बरामद कुरिंदगान का पाकिस्तानी फ्रोजन गोश्त की यूरोप तक रसाई की ख्वाहिश। पाकिस्तान में इंटरनेट सेंसरशिप के बाइस VPN के इस्तेमाल में 6000% इजाफा। सोशल मीडिया ऐप X 1 माह से बंद। सार्फिन VPN का सहारा लेने पर मजबूर।
हुकूमत ने सैलाब मुतासरा 1 लाख घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। 21 लाख मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबा जारी। मज़ीद तामीरात के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरख्वास्त पर एशियाई तरक्याती बैंक $10 करोड़ फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ADB के वफ़द से मुलाकात में मामलात तय। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगहबान राशन पैकेज की निगरानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर तकसीम का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजान में गरीबों को 10,000 रुपए की इमदाद देगी। वज़ीर आला सिंध का 44 लाख खानदानों में 5,000 रुपए तकसीम करने का फैसला। एक मतलब का खेस खबर चल रही थी मेरे हवाले से कि जी मैंने ऐवान में सिगरेट पिया और किसी ने कहा कि जी ये यहाँ पे सिगरेट नहीं पिया जाता, तो मैंने जवाब में कहा कि जिनको सिगरेट से जो है तकलीफ होती है वो खुद ऐवान छोड़ के बाहर चले जाए। ये किसी ने वैसी चुटकला छोड़ा था। कौमी असेंबली इजलास में शेर अफजल मरवत की मुबैना सिगरेट नोशी के चर्चे। स्पीकर कौमी असेंबली ने नोटिस देते हुए आइंदा सिगरेट नोशी न करने की रूलिंग जारी कर दी। स्पीकर ऐवान के कैमरे तो चेक कर लेते। शेर अफजल मरवत ने खुद से मंसूब बातें बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को पेशावर में होगा। सिंध में रमजान के लिए दफ्तरी औकात पीर से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे और जुमे को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अमरीका को भी होश आ ही गया। सदर जो बाइडन का 30,000 बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादत का एतराफ। गाजा के साहिल पर इमदाद के लिए आरजी बंदरगाह तामीर करने का ऐलान कर दिया। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अलेहान उम्र समेत कई अराकीन का अमरीकी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनियों की हिमायत में शहरियों का भी बड़ा मुजाहरा। स्टेट ऑफ द यूनियन जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। यमनी हौथियों के खलीज अदन में बहरी जहाज पर मिसाइल हमले में पहली मरतबा जानी नुकसान। कमर्शियल जहाज पर हमले में 2 सिविलियन मेरीन हलाक और 6 जख्मी हो गए। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर UAE के तैयारे का टायर उड़ान भरते ही आन गिरा। करीब खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पहला पंजाब मुसव्वरी का मुकाबला लाहौर डिवीजन की अक्सा शाहीर ने जीत लिया। शाइस्ता सिद्दीकी दूसरी और सैयदा कशफ मरियम की तीसरी पोजीशन। सूबे भर के सैकड़ों नौजवानों की फन के मैदान में किस्मत आजमाई। औरतों पर ढाए जाने वाले मजालिम और कम उम्री की शादी के मसाइल को कैनवस की जीनत बनाया। ट्राई की थी आज पेंट करने की और आ गई फर्स्ट पोजीशन और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं, बहुत कॉन्फिडेंट। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा, मतलब टैलेंट पता चलता है पाकिस्तान में, पंजाब में कितना ज़्यादा है। PSL में कप्तान बाबर आजम की एक और 50। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 196 रन का हदफ दे दिया। जवाब में यूनाइटेड की बैटिंग जारी।